Hello everyone, welcome to the channel. So this is going to be the second part of our UPSC CSAT series in which we are completing the reading comprehension and I am telling you the most practical way to solve the questions. So if you haven't watched the first part yet, you can click on the card that is shown below on the right side of the video, or you can also visit the description of this video in which I have explained that how with practical approach we can best solve these reading comprehension questions. So just watch this video for 5 minutes. You will get to know the most logical way to solve the question, which is not a trick but the practical way to solve these questions in the examination. Now I have told you the process through which we are going to solve this question. First of all, we are going to read the options that are given here and then we will study the पैसेज. ऑप्शंस पढ़ने से ये होता है कि वी गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट टू सर्च एंड व्हाट नॉट टू सर्च इन द पैसेज. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट implies the most rational assumption that can be made from the passage. Now the second point that I have mentioned you, after we see the options we have to search for the extreme words. Generally in 95% of the cases the extreme options are never the answers. Okay, now let us see the first option here. We are likely to spend more money on cure than prevention. Yes, this can be an answer because we have to see the passage, because nothing given here is extreme. Now it is the job of the government to solve our environmental and public health problems. Health can be protected even if environmental problems go on unattended. Next is loss of traditional lifestyle and the influence of Western values lead to some unhealthy ways of living. Now when we see this option A, this option is based on prevention techniques. The second one puts all of the pressure on the government to solve the environmental and public health problems. Now there is a certain way to think. Now this statement can never be an answer because all of the burden is being put on the single body, that is government, and citizens are not at all concentrated here. ये ऑप्शन हमें कह रहा है कि सारा का सारा प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट पे है टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस एज एन आंसर. नेक्स्ट इज हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड. अब बताओ क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अगर हम इग्नोर करेंगे तो हेल्थ प्रोटेक्ट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना. दीज बोथ आर नेगेटिव स्टेटमेंट्स. वी हैव टू स्ट्रेट अवे एलिमिनेट द नेगेटिव स्टेटमेंट. सो बी एंड सी का भी आंसर नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज loss of traditional lifestyle and influence of Western values lead to some unhealthy ways of living. Now we have to search in the question now just कि ये चैप्टर प्रिवेंशन पे है, क्या ये पैसेज प्रिवेंशन पे है, और देयर इज समथिंग मेंशन्ड अबाउट द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल. लेट अस सी द पैसेज नाउ. Environmental problems causes health problems. Substantial changes in the lifestyle can reduce the environmental or health problems, but this ideas appears almost impossible to adopt. With environmental problems, individual effort can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to an inertia. With health, on the other hand, individual choices can make the difference between life and death, literally. And yet, barring a few, there seems to be some collective lethargy towards making their choices. अब आप मुझे इस क्वेश्चन में ये बताओ कि यहाँ पे ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की बात कहाँ पे हो रही है. मुझे तो नहीं नज़र आया कि यहाँ पे कहीं पे ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की बात हो रही है. ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, वेस्टर्न वैल्यूज़, ये तो पैसेज में मेंशन्ड ही नहीं है. ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया. चैप्टर इज़ मोर बेस्ड ऑन प्रिवेंशन, सो ए इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल वे. मैं आपको कोई ट्रिक याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ आपको. स्टेप 1 हमारा क्या है? स्टेप 1 है वी हैव टू सी दी ऑप्शंस. नाउ व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 इज टू एलिमिनेट द नेगेटिव स्टेटमेंट्स और द एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स. ओके, 50% ऑफ द जॉब इज डन हियर. ओके ना, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इस क्वेश्चन में वी हैव टू see what is the crux of the passage. But before studying the chapter, reading the passage, let us see the options. The scheme of universal basic income should be implemented worldwide as a way of poverty alleviation. हो सकता है अगर universal basic income की ये बात कर रहा होगा ये पैसेज तो बिल्कुल हो सकता है.
वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट, ये भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, वी हैव टू सी कि क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स के बारे में ये पैसेज कुछ बोल रहा है क्या। नेक्स्ट इज यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। नाउ नो स्टेटमेंट इन दिस पैसेज इज नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट तो एक भी नहीं है, बट वी हैव टू डिराइव कि ये क्रक्स क्या है इसका। तो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट अ बेसिक इनकम, ठीक है। दिस इज टॉकिंग अबाउट लेट मी राइट दिस, क्योंकि ये ऐसे क्लियर नहीं होगा तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ तो ज़्यादा इजी होगा समझने को ये। जस्ट अ सेकेंड, यस। नाउ दिस इज आस्किंग अबाउट income, and the next thing it is asking about is poverty elevation. Next is food based nutrition, so this passage is based on nutrition, food based nutrition. The third is nutritional status of food should be improved by creating GM crops, this third option is about the GM crops. Next is using modern food processing technologies, this is about the food processing. सो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, अब हम पैसेज को पढ़ेंगे एंड लेट अस सी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा हम एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं एंड क्या हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स नाउ रीड द पैसेज। Many people are not eating the right food. For some, it is simply a decision to stick with food that they enjoy but which is not too healthy. This is leading to an increase in non-communicable diseases. Now यहाँ पे एक disease की बात आ गई। This line is telling about the diseases. Next is this in turn is leads to a major burden on our healthcare system that have potential to derail the economic progress which is essential for the poor to improve their lives. For others, it is about limited access to nutritious food or lack of affordability leading to monotonous diets that do not provide the daily nutrients to them to develop fully. Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to the nutritional needs. Somewhere along that long road from the farm to the fork, there are serious detours taking place. Now, अगर इस स्टेटमेंट को मैं देखूं तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो रही है हमें कि दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी की तो कहीं बात नहीं हुई। वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा है वी मस्ट पेस फूड न्यूट्रिशन। चलो इसको देखते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं हो सकता, जीएम क्रॉप्स की तो बात ही नहीं हुई कहीं पे। नेक्स्ट इज यूजिंग फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड कहाँ मैंशनड है, कहीं मैंशन नहीं है। ये चैप्टर क्या इस ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये आंसर आ गया। देखो ऑप्शन से हम ना ऑप्शन का भी क्रक्स निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाईलाइटेड है। फॉर एग्जांपल इस ऑप्शन में यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक हाईलाइट कर दिया हमने एंड पॉवर्टी एलिवेशन को हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे हमने फूड बेस्ड न्यूट्रिशन को हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे हमने जीएम क्रॉप्स को हाईलाइट कर दिया एंड यहाँ पे हमने फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ को हाईलाइट कर दिया। तो ऐसे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्रक्स आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अबाउट रैशनल इम्प्लीकेशन, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हमें ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड, यस, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग आर्बिट्री कर्व्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। भाई हो सकता है। knee jerk reaction cannot solve the problems of the pollution but an evidence based approach will be more effective। ये भी हो सकता है क्योंकि एक्सट्रीम तो स्टेटमेंट है नहीं। a heavy penalty should be enforced on those driving without periodic pollution test। in absence of laws to deal with the problem of pollution the administration tends to make arbitrary decisions। अब यहाँ पे तो हमें कोई नेगेटिव मिल नहीं रहा, तो लेट अस एक्सट्रैक्ट कि क्या इन क्वेश्चंस में क्या दिया है। नाउ दिस इज अबाउट कर्बिंग पॉल्यूशन, हमारा ऑप्शन ए इज अबाउट द कर्बिंग पॉल्यूशन। सेकेंड है नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच।
दिस इज हैवी पेनल्टी, दिस फोकस इज ऑन पेनल्टी। एंड जो हमारा लास्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज बेस्ड ऑन लॉज एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट अस सी द पैसेज, एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सारे हमारे ऑप्शंस हैं, दीज आर डिफरेंट। Now, to tackle the problem of pollution in the cities, policies makers think that drastic action like temporary use of odd even number scheme for vehicles, closing school, factories, construction activities, and banning the use of certain type of vehicles are the way forward. Even then, the air is not clean. Vehicles more than 15 years old comprise 1% of the total, and taking them off the road will not make any difference. Banning certain fuels and car types is arbitrarily not proper. Diesel engine produces more PM 2.5 and less CO2 than petrol or CNG engines. On the other hand, both diesel and CNG engines produce more nitrous oxide than petrol engine. No one has measured the amount of nitrous oxide and CNG, nitrogen dioxide, and CNG engines are emitting. Arbitrary bans on the vehicles that have passed mandated fitness tests and the periodic pollution tests are unfair. What is the need is the scientific and reliable information about the source of pollutants on continuing a basis and the technologies that will work to reduce the pollution from them. Now, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले क्या आर्बिट्री कर्व्स की बात हो रही है? कर्विंग पोल्यूशन की बात हो रही है? पोल्यूशन कर्व की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। नेक्स्ट है पेनल्टी, क्या कहीं पेनल्टी की बात हुई है इस क्वेश्चन में? कहीं पे भी पेनल्टी की बात नहीं हुई है। नेक्स्ट इज, क्या इस क्वेश्चन में कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है या एब्सेंस ऑफ लॉस की बात की गई है? बिल्कुल भी नहीं की गई है। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से क्या आ गया कि एक करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा? नी जर्क रिएक्शन, दीज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच। इट इज़ द मोस्ट ब्रॉड सेंटेंस विच कैन बी टेकन फ्रॉम द चैप्टर, कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज। सो बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना, लॉजिकल इन्फ्रेंस पे क्वेश्चन है। लेट अस नाउ सी दी ऑप्शंस हियर फर्स्ट। नाउ पहला ऑप्शन क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर द एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। पहला ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी, दिस इज अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर्स दैट the firms maintain good corporate governance, this is about the international capital markets। नेक्स्ट देखते हैं, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेज द वेज फॉर द रोबस्ट सप्लाई चेन, नाउ दिस इज ऑल्सो अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सप्लाई चेन्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पैसेज में क्या बोला गया है। Now, good corporate governance structure encourages companies to provide accountability and control. A fundamental reason why corporate governance has moved onto the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in the international capital market. The effective corporate governance enhances to external financing by the firms, leading to greater investment, higher growth and employment. Investors look to place their funds where the standard of disclosure of timely and accurate financial reporting and of equal treatment of all stakeholders are met. Now, what does this क्वेश्चन टॉक्स अबाउट? क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये तो चैप्टर, ये तो हमारा पैसेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे है, ये तो हमारा नहीं हो सकता। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, क्या ये चैप्टर, क्या ये पैसेज इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट पे है? बिल्कुल भी नहीं, दिस इज ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो देखो यहाँ पे दो आइडेंटिकल ऑप्शन है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑप्शन बी एंड देन इज ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या है? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इट इज़ रिलेटेड टू क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स। यहाँ पे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज रिलेटेड टू दी रोबस्ट सप्लाई चेन। नाउ व्हेन यू विल फोकस ऑन दिस पैसेज, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो हमें कॉमन मिल गया, बट यहाँ पे दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट क्रेडिबिलिटी नॉट ऑफ द सप्लाई चेन्स। यहाँ पे कहाँ पे सप्लाई चेन्स की बात हुई है?
बट क्रेडिबिलिटी की बात हुई है, कहाँ हुई है, ये पैसेज में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। इन्वेस्टर लुक टू प्लेस देयर फंड्स वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेकहोल्डर्स आर मेट। Accurate financial reporting ensures credibility। ओके, सो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। दैट इज़ वाई डी हम स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर देंगे, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्रेंस पे है ये चैप्टर, लेट अस सी। ऑप्शंस देखते हैं पहले। The home range of elephant needs to be vast area of rich biodiversity. Next is elephants are keystone species and they benefit the biodiversity. Rich biodiversity cannot be maintained in forest without the presence of animals. अब बताओ, ये स्टेटमेंट हमारा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कभी भी आंसर नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट कर दो क्योंकि कैनॉट आ गया। एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पेसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो देखते हैं, तो द चैप्टर यहाँ से हमें पता चल गया। यहाँ पे एलिफेंट को लिंक किया है बायोडाइवर्सिटी के साथ। सेकंड में कीस्टोन स्पेसीज लिंक बायोडाइवर्सिटी के साथ ही किया है, बट बी स्टेटमेंट जो है दैट इज़ ब्रॉडर देन ए स्टेटमेंट। एंड अगर लास्ट स्टेटमेंट की हम बात करें तो एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पेसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो ये हमें रीजनरेशन इज़ लिंक टू एलिफेंट, ये देखना पड़ेगा इस पैसेज में कि लिंक किया है या नहीं। ठीक है, let's now read the passage once. Elephants are the landscape architects creating clearings in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for regeneration of others, which in turn provides sustenance to other herbivorous animals. अब ये पैसेज सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट्स पे बेस्ड नहीं है, एलिफेंट्स से इसको लिंक कर दिया अदर हर्बीवोरस एनिमल्स, मतलब कि एलिफेंट्स के होने से इट इज़ लिंक टू अदर हर्बीवोरस एनिमल्स एज वेल। Elephant eat plant, fruit and seeds, propagating the seeds when they defecate in other places as they travel. Elephant dung provides nourishment to the plants and animals and act as breeding ground for insect. मतलब क्या कि एलिफेंट यहाँ पे लिंक की जा रही है बायोडाइवर्सिटी से, ये तो बात क्लियर हो गई है। Now, in the time of drought, they access water by digging holes which benefit the other wildlife. Now, ultimately यहाँ पे क्या है, the elephants is risk to biodiversity। यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर मार्क करूँगा तो इस आंसर में मैं सी तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ए या बी में से आंसर होगा, डी भी नहीं होगा, बिकॉज एलिफेंट हेयर इज लिंक टू बायोडाइवर्सिटी एंड यहाँ पे भी एलिफेंट इज लिंक टू बायोडाइवर्सिटी। बट इन स्टेटमेंट डी यहाँ पे रीजनरेशन की बात की गई है, विच इज़ ट्रू, बट द पैसेज इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीजनरेशन। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने जैसे ही आप पैसेज पढ़ोगे आपको ये समझ में आएगा कि दिस पैसेज का जो ऑप्शन बी है ना, दिस इज़ वेरी मच ब्रॉड एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी अ वास्ट एरियाज ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है इट इज़ अ कीस्टोन स्पेसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम दैट इज़ सस्टेनिंग। तो यहाँ पे हमने अदर हर्बीवोरस एनिमल्स देख लिया, इंसेक्ट्स को देख लिया, इट मीन्स यहाँ पे बी स्टेटमेंट हमारा ब्रॉडर है। ए स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे ना तो इट इज़ लिंक टू बायोडाइवर्सिटी ओनली, बट बी स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो इट इज़ फोकस्ड ऑन कीस्टोन स्पेसिस की तो बात की ही है एंड बायोडाइवर्सिटी की भी बात की है। तो द बी स्टेटमेंट मैंने पहले लिख दिया इज़ मच ब्रॉडर देन द ए स्टेटमेंट। सो हमारा यहाँ पे बी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर एंड ये अप्रोच आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना एंड डेली मैं ये सीसैट के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लास अपलोड करूँगा एंड आप साथ में इसको कर सकते हो फॉर एक्यूरेट रिवीजन। आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी आपको पता चल जाएंगी कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन से बताना, कमेंट सेक्शन में, ताकि 25 मई को जो आपका एग्ज़ाम है उसके पहले सफिशिएंट प्रैक्टिस हम कर लेंगे ताकि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में एक एज आपको मिल पाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो
कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, या आपको नेक्स्ट पार्ट्स भी चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करना। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड अगर जो पीडीएफ चाहिए आपको, ये सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पीडीएफ है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कमेंट सेक्शन में बताना, मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर स्टडिंग, कीप वॉचिंग।